highly anticipated event organized by IIC for the session on Accelerator Incubation Entrepreneur Opportunities and Early Stage Entrepreneur. I, Amisha, student of Management Department, is delighted to be your host for the event. I am truly honored to be guiding you throughout this enriching experience and enlightening journey. Today's session holds a wealth of knowledge and inspiration, and IPM is privileged to organize and be the part of such sessions. At IPM, we envision a world where your future comes first. IPM Group, under the aegis of Lux Educational Societies, is registered under the Societies Act 1860. It is NEC aggregated with A grade. We always inspire students to take on professional degree programs that can propel their career toward early success. We are dedicated to nurturing and shaping the future of students from diverse educational backgrounds and interests. We always focus on equipping our students with the skills and knowledge necessary for success in their chosen field. Sessions like Accelerator Incubation Opportunities for Early Stage Entrepreneurs always aim to providing platform and access to mentorship, funding, networking, events, workshops, co-working spaces, business development support, and potential partnership with established companies within educational institutions. These events are testaments to the growing importance of fostering innovation and entrepreneurial spirits, and providing ultimate guidance and support to navigate the challenges of entrepreneurial journey. Now, before starting the session, I request Giri Sharma ma'am, Director IPM Group of Institution, to come on the stage to extend a warm welcome and express our gratitude to our distinguished guest Sanyam Mitra, DGM at AIC Tech, for gracing us with their presence. Now, please come on. And a round of applause for ma'am and sir. Thank you, ma'am and sir. I request Sashank Chaudhary sir, Dean Academics, to come on stage to honor Brunel Thakur, Deputy Manager at AIC Tech. Have a round of applause for sir. Now I request Tejinder sir, HOD Management Department, to honor Manish Kumar sir, Assistant Manager at AIC Tech. Thank you, sir. As we embark on this eventful journey together, I encourage each one of you to actively engage, observe, and interact with our esteemed speakers and guests. Seize this opportunity to broaden your knowledge, build new connections, and explore the vast possibilities that lie ahead in the realm of entrepreneurship and innovation. I request Geeti Sharma ma'am to please come on the stage for the welcome address. Good afternoon, everyone. Can I have a loud good afternoon? Great. So, at the outset, I would like to welcome the team from BIMTech. Sayamji, Manishji, Brunalji, it's a great pleasure to have you all in the campus today. I think the team deserves a big round of applause. And we really appreciate your presence in the campus today. And apart from that, we have Dean Academics of the Institute, Dr. Shashank. Apart from them, HODs, principals, faculties, and dear students. So today is a very important day where we have team from none other than BIMTech who have been pivotal in establishing incubations and helping our students to start their startup journey. So today's session which talks about how accelerators work and how one can start their journey, which talks about startups, or which talks about idea generation, which talks about how to take that naval idea of yours to a level where it actually gets executed and take the final shape.
So we at IPM have already taken steps to strengthen our institution's innovation council, where we are having sessions where we are engaging students in a lot of activities so they can understand what is the importance of having an incubation, what is the importance of thinking out of the box, and what is the importance of being a job giver rather than being a job taker. So we were just having a discussion while we were having lunch that when we talk about the developed part of the world, whether it's US or China for that matter. So where is the difference, primarily what is the difference between the developing and the developed countries? So one of the very common parameters and one of the very important parameters is that what is the level of manufacturing, what is the level of percentage of startups, which these countries are having. So when you talk about US or for that matter China also, so they believe in a system where everything is having a self-sustainable model, They are not dependent upon others to sustain their country. The reason behind is very clear that most of the manufacturing which is happening is within the country. But at the same time, when we talk about our own country, though we have taken a lot of steps in the last few years to strengthen this particular area, but still there is a lot to be done to inculcate that culture of doing your own business, thinking out of the box, and not only thinking out of the box, actually taking steps to convert that idea into reality. So when we often talk to the students while in schools or in college as well, so when we ask them that what is your ultimate goal of doing particular course, whether it is an undergraduate course or a postgraduate course, so you will see 99% hands raising for a placement. So there will be hardly any student who will think about becoming a job giver rather than becoming a job taker, So I strongly urge the students of MBA who are sitting here today as well as MCA that placement is something which you can always aspire for. But if you are somebody who is passionate about starting their own businesses, who have some ideas in their mind, so this is the time to convert them into reality. So we are going to get a lot of support from the team BIMTech, who are already established in this particular area. So whosoever has that in mind and is passionate, to convert that idea into reality, so these are the best times. I think all of you have watched Shark Tank. Yes? So Shark Tank has again, has generated an awareness in the masses that no idea, no product, no service is small. It is just that novelty element, which should be there with that product or service, and you should know कि वो product बेचना कैसे है market में. So once that is there, then once that ball starts rolling, then nobody can stop it. और एक बार अपना business start करने में, once you have your own startup, जो एक तो motivation जो आपको आता है, every day looking at numbers and seeing that how have to grow it, is something which is not a 9 to 5 job. It is something where you are devoted 24/7. But yes, that's how India will embark on a journey where our Prime Minister has also seen a vision of making India a developed country by 2047. And I think in that vision of converting that dream into reality, it is very important that youth of the country should think about starting their own businesses, having their own startups, and in that light, thinking out of the box is something which is very important. So I'll not take much time because we have experts sitting here who will guide you again in that area. With those words, I once again welcome the team from BIMTech and everyone who is sitting in the hall. Thank you so much everyone, and let's have a productive time. Thank you once again. Now I request everyone to put your hands together as we have Mr. Manish Kumar with us, who is an enthusiast who delved into the startup ecosystem in 2021, starting off with AdTech startup. Later on, he decided to explore the other side of ecosystem and is currently working as an assistant manager at AIC BIMTech. Sir, please come on the stage. Sir, now the stage is all yours. Good afternoon everyone. Good
and thank you, respected Director Ma'am and Karu Ma'am, for inviting me here to speak and share knowledge on this topic, incubation and accelerator. So, आप लोग में से कुछ स्टूडेंट पहले भी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, तो अभी कोई ऐसा है यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारी incubation विजिट कर लिया? Anyone? And could you guys please आप लोग बता सकते हैं आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से? BBA. अच्छा, ठीक है, ग्रेट. सो आज का टॉपिक है कि इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेटर जो है वो कैसे स्टार्टअप्स को या फिर फैकल्टीज को या स्टूडेंट्स को या फिर अर्ली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैसे सपोर्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट बिफोर जंपिंग टू दिस सेशन कि एक्सेलरेटर क्या है, इंक्यूबेशन क्या है, पहले हम लोग थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे. क्योंकि अच्छा, मैं ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग सेशन नहीं होगा, मैं Q&A फॉर्मेट में आप लोग से इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है. सो मैं वहाँ आके आप लोग से इंटरेक्ट करके डिस्कशन लूँगा. तो आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है. तो जो इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन है उनका सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मेन जो स्टेक है वो स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है. तो इसलिए हमें हेलो, तो इसलिए हमें पहले तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप क्या है, इंडिया में क्या सिस्टम है, इंडिया में क्या इकोसिस्टम है, इंडिया में क्या लैंडस्केप है स्टार्टअप के बारे में. तो आप लोग में से कोई मुझे गेस करके बता सकता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में अगर मैं नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बात करूँ एंड नंबर ऑफ स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स की बात करूँ तो कितने प्लेस में होगा, क्या पोजीशन होगी पूरे वर्ल्ड में? 4. ठीक है. देखो, राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, आपको मैं सिर्फ गेस करने के लिए बोलूँगा. 4. ठीक है, ग्रेट. एनी मोर आंसर्स? गेस करो. 10. ठीक है. एक और 6. ठीक है. तो इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन में है अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें या टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात करें. यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो या फिर 100 करोड़ से ऊपर है. नाउ अगेन आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग में से कोई बता सकता है कि इंडिया में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप होंगे? कभी सुना है, कभी कहीं पढ़ा है, कुछ इसके बाद कुछ आइडिया है? 100 के आसपास है. ठीक है, एक 100 आया, 100 से थोड़ा सा ऊपर है, 108. ठीक है. तो देखिए, जो यूनिकॉर्न का नंबर है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि जो वैल्यूएशन अगर आपका मान लीजिए आज 1 बिलियन से ऊपर है तो आप एज यूनिकॉर्न कहलाओगे, लेकिन कल मान लो आपका वैल्यूएशन गिर गया तो आप यूनिकॉर्न नहीं कहलाओगे. ठीक है. तो इसका कोई एग्जैक्ट नंबर आपको हर समय नहीं मिलेगा. मे बी अगर मैं आपसे कुछ बोलूँ तो 1 महीने बाद वो नंबर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है. तो एज पर फोर्ब्स जो 2024 का डेटा है, 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है पूरे इंडिया में एंड पूरे इंडिया में मोर देन 117 DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप है. तो बेसिकली DPIIT का मतलब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. अगर आपने DPIIT के अंदर में रजिस्ट्रेशन किया है अपना स्टार्टअप का तो बेसिकली आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक टैग मिलता है कि आप एक सर्टिफाइड स्टार्टअप हो. मान लो आपको किसी स्कीम में अप्लाई करना है, किसी जगह पे इंक्यूबेट होना है या कहीं पे आपका नाम नॉमिनेट हो रहा है स्टार्टअप थ्रू, तो आपका DPIIT में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. बेसिकली एक गारंटी देते हैं कि हाँ ये एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइड स्टार्टअप है. कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप के नाम बता सकते हो क्या? शार्क टैंक देखते हो तो पता होगा. कुछ ऐसा यूनिकॉर्न मतलब बेसिकली जो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप है, वैल्यूएशन छोड़ दो, 1 बिलियन वो कैलकुलेट मत करो, ऐसे नाम यूनिकॉर्न क्या क्या स्टार्टअप? बाइजूस था, अब नहीं है. ओला क्या? ठीक है. और बताओ? पेटीएम. ठीक है. रैपिडो. जेप्टो अभी यूनिकॉर्न नहीं बना है. ओला. ठीक है. ठीक है. ठीक है. अब यूनिकॉर्न के बाद आते हैं यूनिकॉर्न्स कंपनी. ऐसी कंपनी जिनका वैल्यूएशन 200 मिलियन से लेके $1 बिलियन के बीच में है. ठीक है. जेप्टो इसमें आता है अभी, मे बी नियर फ्यूचर वो यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है.
अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप लोग में से मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कितने परसेंट ऑफ स्टार्टअप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज से आते होंगे? अगर 100% टोटल स्टार्टअप इंडिया में तो कितने परसेंटेज ऑफ स्टार्टअप टीयर 2 या टीयर 3 या छोटे शहरों से आते होंगे? 70, ठीक है, 75, ठीक है, एक और 80, ठीक है। तो 48% अपने स्टार्टअप्स हैं वो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज से आते हैं इंडिया में। एंड अगर मैं वुमेन लेड स्टार्टअप्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मोर देन 8,000 वुमेन लेड स्टार्टअप है। नॉट, अब इसमें ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ किसी वुमेन ही लीड कर रही है या फिर किसी स्टार्टअप में एज अ को फाउंडर के प्रोफाइल में वो होंगी। तो ये नंबर जो है ये मोर देन 8,000 है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल क्लिप था कि इंडियन लैंडस्केप में क्या है, कितने यूनिकॉर्न्स है, कितने स्टार्टअप्स है, वुमेन लेड स्टार्टअप्स कितने हैं, कितने परसेंटेज ऑफ द स्टार्टअप जो है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आते हैं। अब हम लोग क्योंकि यूपी में बैठे हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूपी का भी बता देता हूँ कि यूपी का लैंडस्केप क्या है। अच्छा, आपको पता होगी यूपी पूरे इंडिया में एज अ स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर स्टेट की बात करें तो कितने पोजीशन पे आता होगा? सेकंड, ठीक है, फोर्थ, सिक्स, थर्ड। सो यूपी फोर्थ में आता है, ठीक है। फर्स्ट में ग्रेट महाराष्ट्र, सेकंड में ग्रेट कर्नाटक, आप लगता है इंफॉर्मेशन आती है। थर्ड दिल्ली, ठीक है, और यूपी, ठीक है। उसके बाद फिर गुजरात, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है आप इस चीज़ को समझो। तो यूपी जो है 4th पोजीशन पे आता है पूरे इंडिया में अगर एज अ स्टेट का बात करें तो। यूपी में मोर देन 10,000 DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप है पूरे इंडिया में। कितना था, कितना बोला था मैंने? 48। नहीं, पूरे इंडिया में कितने DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप है? वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है पूरे इंडिया में। 1,17,000 से ज़्यादा DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न मतलब तो बहुत बड़े स्टार्टअप होते हैं। मैं इन जनरल स्टार्टअप की बात करूँ जिनको DPIIT का टैग मिल रखा है। ऐसे तो आपको 3,000 से ज़्यादा का डेटा मिलेगा, लेकिन जो DPIIT रजिस्टर्ड है वो मोर देन 1,17,000 है एज पर दिसंबर 2023। अभी जो डेटा है वो अपडेट होना बाकी है। यूपी में भी 48% ऑफ द स्टार्टअप्स टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आते हैं। अब हमने यूनिकॉर्न्स की बात की थी, तो अगर यूपी 4th में है तो डेफिनेटली इसमें यूनिकॉर्न्स भी होंगे। गेस करो कितने यूनिकॉर्न्स होंगे यूपी में? यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कितने होंगे पूरे इंडिया में? अगर 107 अभी डेटा है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो यूपी में कितने होंगे? कितना? जोर से बोलो। हाँ जी, परसेंटेज नहीं, नंबर बता दो। 30, 40, ठीक है। यूपी में 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। पेटीएम सुना है, यूज करते हो? पेटीएम मॉल, फिजिक्स वाला, इन्फो एज, ठीक है। उसके बाद आई थिंक 2-3 और अभी मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। तो यूपी में टोटल 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। अब यूपी में हम लोग एक इंटरेस्टिंग नंबर डेटा है कि अगर पूरे इंडिया में 8,000 से ज़्यादा का डेटा है अगर वुमेन लेड स्टार्टअप या फिर वुमेन जो की को फाउंडर है किसी स्टार्टअप में, तो यूपी में मोर देन 4,000 वुमेन है जो कि ऐसे स्टार्टअप चला रहे हैं। तो आप समझ अगर पूरे इंडिया में ही 8,000 है तो आधे से ज़्यादा तो यूपी में ही है वुमेन लेड स्टार्टअप। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यूपी का पॉलिसी जो है ना वो बहुत अच्छा है स्टार्टअप को लेके। यूपी में इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए भी एंड स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा पॉलिसी बनाया गया, उस पर मैं अभी बाद में आऊँगा। ये आपको मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए यूपी के लिए कि आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आगे परस्यू करना चाहते हो तो आपको समझना जरूरी है इकोसिस्टम कैसा है हमारा। अब इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, वो मैं लास्ट में आऊँगा क्योंकि आपके लिए मोर रेलिवेंट है इंक्यूबेशन। क्यों वो मोर रेलिवेंट है वो मैं आपको बताऊँगा। अभी बात करते हैं इंक्यूबेशन के बारे में। इंक्यूबेशन ऐसी संस्था है जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर इंक्यूबेशन सेंटर।
अब इसमें सपोर्ट अलग अलग तरीके के आते हैं, उसको मैं बताऊंगा। उससे पहले समझते हैं कि इंक्यूबेशन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो मेनली जो हमें देखने को मिलता है एकेडमिक इंक्यूबेशन, मतलब ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर जो कि कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर में। कॉर्पोरेट इंक्यूबेशन, मान लो कोई फाइनेंस की कंपनी है, उन्होंने ये सोचा कि जो हमारे फाइनेंस में सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जो भी स्टार्टअप करेगा उनको हम सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने अपना एक कॉर्पोरेट इंक्यूबेशन सेंटर खोल लिया। तीसरा हो गया स्टेट इंक्यूबेशन सेंटर, कोई स्टेट है उसको किसी सेक्टर स्पेसिफिक के लिए कुछ इंक्यूबेशन खोलना है, कोई भी दूसरे जन के लिए खोलना है, तो स्टेट स्पेसिफिक आपका इंक्यूबेशन सेंटर हो गया। और भी है, बट मेन ये तीन मेजर ये है। अब हम लोग क्योंकि एकेडमिक्स में हैं, आज हम लोग समझेंगे एकेडमिक्स इंक्यूबेशन के बारे में। नाउ इंक्यूबेशन भी अलग अलग थीम में चलती है एकेडमिक्स में भी। कोई आपका सिर्फ बिजनेस इंक्यूबेटर है, जैसे हम है AIC बिमटेक इज एन सेक्टर एग्नोस्टिक बिजनेस इंक्यूबेटर, क्योंकि हमारा जो होस्ट इंस्टीट्यूट है वो एक बिजनेस स्कूल है। हमारी एक्सपर्टीज कमर्शलाइजेशन, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ये सब चीज़ में है, तो इसलिए हम लोग सेक्टर एग्नोस्टिक बिजनेस इंक्यूबेटर है। हमारे पास कोई लैब नहीं है, कोई पेटेंट का रिसर्च सेंटर नहीं है, रिसर्च सेंटर या पेटेंट सेंटर नहीं है, इसलिए हम लोग बिजनेस इंक्यूबेटर है। इसी तरीके से आप किसी के पास टेक की बहुत अच्छी फैसिलिटीज है तो वो टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर बन सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग बहुत सारे ऐसे भी इंक्यूबेशन सेंटर है जो सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। AIC बनस्थली है, वो सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। आपका तेलंगाना गवर्नमेंट का वी हब करके एक है जो कि तेलंगाना तमिलनाडु का है, जो कि स्टेट की तरफ से इंक्यूबेशन है जो सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हेल्थ या मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर है जिनके पास हॉस्पिटल्स, उनके पास एक्सपर्टीज है। अब हेल्थ भी एक बहुत बूमिंग सेक्टर है, अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है हेल्थ सेक्टर इंडिया में, तो नए नए बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर उभर के आ रहे हैं। यहीं पे एक जिम्स GIMS गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जिम्स इंक्यूबेशन सेंटर अभी नया उनका इनोग्रेशन हुआ है। इस तरीके से अगर आप IIT मद्रास को देखोगे तो उनका भी अलग से एक मेडटेक इंक्यूबेशन सेंटर है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर जो सिर्फ एग्रीटेक में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट का जो भी एक्सपर्टीज होता है वो उस हिसाब से अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करते हैं। तो ये हमें समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर। आप सपोर्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स को, ये समझते हैं या फिर फैकल्टीज को या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर्स। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो है मेनली मोस्ट ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ आइडिया है तो आप हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के पास या कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर के पास आ सकते हैं। इसमें हम आपके आइडिया को वैलिडेट करेंगे कि आपका आइडिया सच में आगे ले लाइक इसमें आगे काम करने लायक है कि नहीं, क्या यह आइडिया मार्केट में चलेगा कि नहीं, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, इसमें आप कैसे कुछ अलग कर सकते हैं, आपने ऑडिट किया तो वो कितना वायबल है। मेंटरिंग सपोर्ट हम आपको देंगे या कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर। दूसरा होगा नेटवर्किंग। अगर आप आते हो, आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से आपका नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, मेंटर्स हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, ठीक है। ये सारे सपोर्ट आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर देता है। फिर इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट हो गया, एंजल इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट हो गया, VCs के साथ कनेक्ट हो गया। मान लो आप एक स्टार्टअप हो और आपको किसी VC से कनेक्ट करना है, अगर आप डायरेक्टली ऐसे जाओगे ना तो दे मोर देन 90% चांस कि वो आपसे मिलेगा नहीं या फिर आप उनसे मिल नहीं पाओगे, ठीक है। बट अगर किसी आप इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू जाते हो तो मेरे उनके कोई प्रोग्राम के थ्रू या फिर उनके कोई पर्सनल नेटवर्क के थ्रू आप VC से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी VC को आपका आइडिया पसंद आएगा नहीं आएगा वो उनके ऊपर है, बट आपको कनेक्ट डेफिनेटली इंक्यूबेशन सेंटर करा सकता है। दूसरा हो गया फंड्स। काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स जो है वो ग्रांट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इंक्यूबेशन सेंटर VC के कनेक्ट करके उनके साथ कनेक्ट करके प्रोग्राम रन करते हैं जिसके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ते हो तो। ये एक कुछ मैंने आपको कॉमन पॉइंट्स बताए। अब सब अलग अलग सेक्टर पे काम करें तो उनका अलग अलग स्पेसिफिक सपोर्ट भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन जो है वो इस तरीके का सपोर्ट होता है। अब सिर्फ इंक्यूबेशन नहीं है जो आपको सपोर्ट करते हैं, इवन स्टेट भी है। जैसे मैंने बोला कि UP 4th ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक्टिव है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि UP के जो पॉलिसी है, इंक्यूबेशन वाले में नहीं जाएंगे हम, स्टार्टअप वाले में जाएंगे।
यूपी का पॉलिसी स्टार्टअप्स को कैसे हेल्प करता है, ठीक है। मान लो अगर आप एक स्टार्टअप हो, आपका सिर्फ आइडिया है, ठीक है, आपने आगे उस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, अगर आप आइडिएशन स्टेज पे भी हो तो यूपी गवर्नमेंट आपको महीने का 17,000 दैट इज 17,500 रुपये आपको सस्टेनेंस अलाउंस देगी। अगर आपका कोई ऐसा आइडिया है जो कि MVP या प्रोटोटाइप के लिए जाना चाहता है, अगर MVP या प्रोटोटाइप का मतलब कितनों को पता है यहाँ पे, कोई बता सकता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय MVP या फिर प्रोटोटाइपिंग? कभी सुना है ये वर्ड प्रोटोटाइप? सुना है? बताओ। देखो राइट रॉन्ग कुछ नहीं, मैंने वो गेस करो, ठीक है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या हो सकता है? नॉट एग्जैक्टली। प्रोटोटाइप मतलब आप जो भी आइडिया पे काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, उसका जो फाइनल वर्जन है ना, उसका एक डमी प्रोडक्ट, ठीक है, या उसका एक बेसिक वर्जन जिसमें मिनिमम जो चीज़ें हैं जो चाहिए कस्टमर, तो वो आपने उसमें डाल दिया। अब उससे ये होगा कि आप उसको मार्केट में टेस्ट करोगे, ये चल रहा है नहीं चल रहा, और इसमें कस्टमर आपको क्या फीडबैक दे रहा है, तो ये प्रोटोटाइप होता है। ये MVP बोल सकते हो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो अगर आपका स्टार्टअप या प्रोडक्ट इस स्टेज पे है तो आपको 5 लाख तक का ग्रांट जो है वो स्टार्टिंग यूपी गवर्नमेंट से मिलेगी। एंड अगर आपका स्टार्टअप मान लो प्रोटोटाइप हो गया, MVP हो गया, अब आपको मार्केट में, ऐसा तो नहीं है कि आप प्रोडक्ट बना के किसके पास रखते हो, प्रोडक्ट बनाया किस लिए? बेचने के लिए, धंधा बनाने के लिए। तो जैसे आप उसको मार्केट में लेके जाओगे तो उसके सपोर्ट के लिए फिर आपको स्टार्टिंग यूपी से 7.5 लाख का आपको सपोर्ट मिलेगा, जो कि एक बार में नहीं मिलेगा, मल्टीपल 3 ट्रांस में आपको वो पैसे आएंगे। अब एक जो रिसर्च करते हैं, जो पेटेंट फाइलिंग करते हैं, उनके लिए भी अच्छा सपोर्ट है। मान लो आप नेशनल लेवल पे कोई एक सक्सेसफुल पेटेंट फाइल करते हो तो आपको 10 लाख तक का अमाउंट जो है वो स्टार्टिंग यूपी गवर्नमेंट देगी। एंड अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे एक सक्सेसफुल पेटेंट फाइल करते हो तो आपको 20 लाख तक का जो है अमाउंट वो यूपी गवर्नमेंट रिइंबर्स करेगी। ग्रांट या उस तरीके से नहीं देगी, रिइंबर्समेंट करेगी। एंड मान लो आपको स्टार्टअप हो एंड आप अगर किसी नेशनल स्टार्टअप इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 50,000 तक का रिइंबर्समेंट आपको यूपी गवर्नमेंट देगी एंड 1 लाख तक का रिइंबर्समेंट देगी अगर आप किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो। अब आप सोच रहे हैं चलो हम ये तो अच्छी चीज़ है, आपने बता दिया इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अब हम जाके स्टार्टअप यूपी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ से। आपको क्या लगता है वहाँ से डायरेक्ट पैसे मिल जाएगा आपको? बताओ। आप अगर स्टार्टिंग यूपी से कनेक्ट, हाँ ठीक है, आपने हाँ बोला, तो ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। अब इंक्यूबेशन क्यों, अब मैं इसको बताऊंगा कि मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि अगर आपको ये सब में से कोई भी जैसे सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आपको किसी इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मान लो आप एक इंक्यूबेशन सेंटर हो, आपके पास एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप ने बोला कि सर मेरा है आइडिया ये स्पेस में है, क्या आप मुझे स्टार्टिंग यूपी से जो सस्टेनेंस अलाउंस है वो आप क्या प्रोवाइड करा सकते हो, तो वो फिर इंक्यूबेशन से बात करेगा। अगर इंक्यूबेशन ने उनको अप्रूव किया तो फिर उनके ब्याज में इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा स्टार्टिंग यूपी को, तभी आपको ये सपोर्ट जो है वो ग्रांट होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, आपको इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू ही जाना पड़ेगा ये सपोर्ट लेने के लिए। अब कॉलेज में ये होता है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपने देखा होगा कि स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप का बात करें तो वो या तो ECL तक या तो IIC तक, मोस्ट ऑफ द कॉलेज उस लेवल तक होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि कॉलेज एक इनिशिएटिव ले रही है, एक बेस तैयार कर रही है, एक कल्चरल स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मान लो ECL है कॉलेज में, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रन कर रहे हैं। अब उनका काम है कि पूरे कॉलेज में स्टार्टअप एक्टिविटीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का कल्चर ग्रो करना है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो मान लो उसने सक्सेसफुली किया, अब उसमें से 100 बच्चे हैं, अगर उसमें से मान लो 2 या 3 बच्चे भी इंटरेस्टेड होकर आ गए सामने, ठीक है, हमें तो ये चीज़ अच्छी लगी, कॉलेज ने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, हमें इस इकोसिस्टम से इस इकोसिस्टम के बारे में बताया, हमें पता चला, अब हम इस इकोसिस्टम में जाना चाहते हैं।
अब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे अगर इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है तो वो बच्चा जो है वो कहीं और जाएगा या किसी ऐसे कॉलेज में जाएगा जिनके पास इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है। तो इसी के लिए इंक्यूबेशन का जो रोल होता है वो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो अगर आप एक इंस्टीट्यूट हो एंड अगर आप एक इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप कर रहे हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो अपने स्टार्टअप आइडिया को आगे लेके जाने के लिए। नाउ इंस्टीट्यूशन ही क्यों, सबसे कॉमन जो इंक्यूबेशन सेंटर वो इंस्टीट्यूशन में ही क्यों होता है, आपको कोई गेस कर सकते हो क्या? इंस्टीट्यूशन को ही क्यों सेलेक्ट किया जाता है इंक्यूबेशन सेंटर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम? फैकल्टीज भी आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप लोग आंसर दे सकते हो क्योंकि आप लोग अच्छे से समझते हो इंस्टीट्यूशन को। इंस्टीट्यूशन को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है कि इंस्टीट्यूशन में एक तो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव या कुछ ना कुछ इनोवेशन या कुछ ना रिसर्च हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। स्टूडेंट्स अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ नए आइडिया पे काम करते हैं, फैकल्टीज अपने रिसर्च पे काम करते हैं, पेटेंट फाइलिंग पे काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन के पास लैब्स फैसिलिटीज़ होती है, टेक्निकल लैब हो गया, AI लैब हो गया, 3D प्रिंटिंग लैब हो गया। अगर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो उनके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, अलग अलग फैसिलिटीज उनके पास भी लैब की होती है, ठीक है, एंड उनके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होता है। तो ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है वहाँ पे। अब उसको कैसे स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज बनाई है एंड इसके लिए वो इंस्टीट्यूशन में इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एक आपको मैंने ब्रीफ दे दिया इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में, क्यों जरूरी है पॉलिसी, ईपी की पॉलिसी के लिए। अब एक्सलेटर के बारे में थोड़ा सा नहीं समझते। एक्सलेटर वर्ड सुना है किसी ने पहले? अब आप कोई गेस कर सकता है एक्सलेटर क्या है? इंक्यूबेशन का तो आपको समझ आ गया, क्योंकि बोलने लगे नहीं। एक्सलेटर का मतलब ये है कि वो भी एक सेम संस्था है जो कि स्टार्टअप को सपोर्ट करती है। उसमें डिफरेंस ये है कि वो ऐसे स्टार्टअप को सपोर्ट करती है जिनका प्रोटोटाइप या एमवीपी हो चुका है या फिर जो ऑलरेडी अपना रेवेन्यू कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी मैच्योर स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सलेटर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो एक्सलेटर का मतलब मैंने आपको एकदम बेसिक सिंपल भाषा में समझा दिया। एक्सलेटर और इंक्यूबेशन में क्या फ़र्क होता है इसकी थोड़ा समझ। इंक्यूबेशन कैसे स्टार्टअप को सपोर्ट करता है? क्या बोला था मैंने? इंक्यूबेशन में कैसे स्टार्टअप को सपोर्ट करता है? न्यू आइडियाज को जो कि इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर। एक्सलेटर जो है वो ऐसे आइडिया को सपोर्ट करता है जो कि ऑलरेडी ग्रोथ में है या फिर उनका एमवीपी या प्रोडक्ट हो चुका है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया ड्यूरेशन का, कि कितने टाइम तक सपोर्ट करता है। जो कॉमन टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्यूबेशन का वो 1 मंथ to 3 मंथ होता है अगर आप उनके इंक्यूबेशन प्रोग्राम में हो तो, ठीक है। आपको 1 महीने से 3 महीने तक सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप एक्सलेशन में हो तो आपको 1 महीने से लेके 1 साल तक या 1 साल से ऊपर का भी सपोर्ट मिल सकता है अगर आप एक्सलेटर के प्रोग्राम में हो। वाई कॉम्बिनेटर का नाम सुना है किसी ने? अल्फाबेट वाला वाई कॉम्बिनेटर। सो वाई कॉम्बिनेटर यूएस बेस्ड एक्सलेटर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सलेटर है। उनका जो टाइम ड्यूरेशन है प्रोग्राम का वो 3 मंथ का होता है। वो 3 मंथ के लिए कोई भी स्टार्टअप के पास आता है वो 3 मंथ के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरा डिफरेंस तो ये हो गया टाइम का। तीसरी चीज़, अब इक्विटी वाली, इक्विटी वर्ड सुना होगा साफ्टवेयर देते सब लोग, कोई बताओ क्या मतलब है? हिंदी तो हिला दिया सबने, ठीक है, कंपनी का शेयर का परसेंटेज, ठीक है। इंक्यूबेशन जो है वो मोस्टली देखो कोई इंक्यूबेशन ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सलेटर भी रन करते हैं, इंक्यूबेशन भी रन करते हैं। जैसे हम भी उनमें से एक है, हमारा इंक्यूबेशन वाला प्रोग्राम भी है, हमारा एक्सलेटर वाला प्रोग्राम भी है। जो हमारा इंक्यूबेशन वाला प्रोग्राम है वो 1 महीने से 3 महीने के बीच में होता है एंड जो हमारा एक्सलेटर वाला प्रोग्राम है वो 6 महीने से या 6 महीने से ऊपर का होता है, ठीक है। तो एक्सलेटर जो है वो हमेशा इक्विटी लेती है स्टार्टअप से। अगर आप किसी एक्सलेटर के पास जाते हो, उनसे सपोर्ट लेते हो, वो आपको ऑनबोर्ड करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उनको आपको अपना इक्विटी देना पड़ेगा। वो इक्विटी 1% से लेकर 15-20% कितना भी हो सकता है। अब आप इक्विटी क्यों दोगे?
क्योंकि एक्सीलरेटर आपको फंड रेज करने में सपोर्ट करेगा। एक्सीलरेटर का काम ही वही है कि अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आता है तो आप उनको पैसा दिलाने के लिए मदद करो, साथ में साथ मेंटरिंग भी करो, ठीक है। इंक्यूबेशन का क्या है? इंक्यूबेशन का मेन फोकस होता है मेंटरिंग, रिसोर्स, ठीक है, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंक्यूबेशन का मेन फोकस फंड रेजिंग नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो खुद से पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पैसे की बात आई कि एक्सीलरेटर जो है वो आपको अपने एंड से पैसे देंगे। उनके पास ग्रुप ऑफ एंजल इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कॉर्पोरेट्स होते हैं जो कि ऐसे स्टार्टअप से पैसे लगाने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर के पास आओगे तो वो एक्सीलरेटर के पास आओगे वो तो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर होते हैं जो कि आपने डायरेक्ट पैसा लगाएंगे। अगर आप इंक्यूबेशन के पास आते हो तो आपको या तो किसी गवर्नमेंट के ग्रांट के थ्रू, जैसे मैंने आपको ये यूपी का पॉलिसी के बारे में एग्जांपल दिया, या फिर जैसे हम भी करते हैं, हमने ऐसे बीसीस के साथ टाइप कर लिया है। हम उनको बोलते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे 2, 3, 4 या जितने स्टार्टअप है उसको आउट करके देंगे, बदले में आपको उनको फंड रेजिंग एंड मेंटरिंग का सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इंक्यूबेशन आपको या तो किसी गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू या तो किसी थर्ड पार्टी बीसीस के थ्रू, एंजल इन्वेस्टर के थ्रू फंड रेज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं कि एक्सीलरेटर कैसे काम करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर कैसे काम करता है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बता देता हूँ। हम लोग सेक्टर एग्नोस्टिक बिजनेस इंक्यूबेटर है। सेक्टर एग्नोस्टिक का मतलब पता है किसको? एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है, एक सेक्टर एग्नोस्टिक होता है। बताओ, सुना है कभी ये वर्ड सुना है? सेक्टर एग्नोस्टिक। सेक्टर एग्नोस्टिक का बेसिकली मतलब ये है कि आप मल्टीपल सेक्टर को केटर कर रहे हो, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस इंक्यूबेटर है तो हमारे लिए वो क्राइटेरिया नहीं है कि हम लोग सिर्फ किसी सेक्टर के स्टार्टअप को सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ में हो तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप एडटेक में हो तो भी सपोर्ट करेंगे, आप मेडटेक में हो तो भी सपोर्ट करेंगे, आप एग्रीटेक में हो, फूड टेक में हो, कोई भी सेक्टर में हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग पिछले 6 साल से इस इकोसिस्टम में 2018 में ये एक्सक्लूसिव 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था। अभी तक हमने मोर देन 350 स्टार्टअप को सपोर्ट किया है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, आइडिएशन से लेके मैच्योर स्टार्टअप तक। हमारा 4 प्रोग्राम है, खोज, प्रारंभ, गुरुकुल, उड़ान। अच्छा, खोज नाम से क्या आपको समझ आ रहा है? एज नेम सजेस्ट, खोज जो है वो आइडिएशन स्टेज स्टार्टअप के लिए है कि आपके पास कुछ आइडिया है, आप हमारे पास हम आपको कैटर करेंगे, बताएंगे कि आपका आइडिया सही है नहीं है, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, रिसर्च कैसे करना है, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, पिच डेक कैसे बनाना है, अपना आइडिया को किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। प्रारंभ से क्या समझ आता है? स्टार्ट करना, ठीक है। आइडिएशन स्टेज हो गया। प्रारंभ में अगर आप आते हो तो ये मोस्टली वैसे स्टार्टअप के लिए जो कि MVP या प्रोटोटाइप स्टेज पे है, उनको अपना प्रोडक्ट का एक डमी वर्जन या एक फर्स्ट वर्जन बनाना है। उस स्टेज में अगर आपको तो हम आपको प्रारंभ के प्रोग्राम में सपोर्ट करेंगे। गुरुकुल का क्या मतलब है? गुरुकुल का मतलब क्या है? जोर से बोलो, सर के बारे में सिखाते हैं। मतलब बेसिकली मेंटरिंग करना, गाइड करना, ठीक है। तो गुरुकुल हमारा पहले मेंटरिंग प्रोग्राम हुआ करता था, अभी ये मेंटरिंग एंड एक्सप्रेशन प्रोग्राम है। इसमें हम आपको मेंटर भी करेंगे, इसमें हम आपको इन्वेस्टर के थ्रू पैसे या फंड रेज करने के लिए भी हेल्प करेंगे। उसके बाद हमारा उड़ान प्रोग्राम। उड़ान का क्या मतलब होगा? उड़ना। उड़ान का मतलब उड़ना। तो जैसे कि आप अगर कोई नेचुरल स्टार्टअप हो या ऐसे स्टार्टअप हो कि ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, आपको स्केल करना है, ठीक है, आपको और बड़ा बनना है अपने सेक्टर में, तो उस स्टेज के स्टार्टअप को हम लोग उड़ान के थ्रू सपोर्ट करते हैं, जिसमें मेंटरिंग बहुत कम होता है, उसमें फंड रेजिंग वाला पार्ट ज़्यादा होता है। और गुरुकुल में मेंटरिंग एंड फंड रेजिंग दोनों बैलेंस लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम्स के बारे में मैंने आपको बता दिए एंड हमने अभी तक कितने स्टार्टअप सपोर्ट किए ये मैंने आपको बता दिया, किस सेक्टर में हम लोग स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है, हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी है।
स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए काम करती है ऑल ओवर इंडिया। तो उनके अंडर में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है जो कि बेसिकली स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करने के लिए आइदर इन टर्म्स ऑफ ग्रांट और आइदर इन टर्म्स ऑफ सीसीडी, जो कि कन्वर्टेबल डेब्ट होता है। मतलब अगर आपको सीसीडी मिला है तो बाद में जाके वो आपके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं फंडिंग में। एक मैंने आपको ये ग्रांट देते बता दिया, और दूसरा मैंने आपको हमारे गुरुकुल और काम प्रोग्राम के बारे में बताया जिसके थ्रू हम लोग फंड रेजिंग में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंक्यूबेशन सेंटर काम करता है। एक्चुअली हमारा थोड़ा सा हार्ड स्टॉप है तो मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, बट आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप हमें लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। AIC फिनटेक को आप रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे से, मोना से, सैंकर से, किसी से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी से, एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। ठीक है, आपके पास कुछ भी क्वेरीज है, आपको कुछ भी पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो, then प्लीज। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। अभी नहीं है कोई बात नहीं, बाद में भी कभी भी कुछ भी आता है आप लोगों के पास, आप लोग स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हो तो प्लीज रीच आउट टू अस। आपका अभी IBM भी एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, आपके यहाँ भी इंक्यूबेशन सेंटर नियर फ्यूचर में खुलने वाला है, तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़। उसके लिए प्लीज एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए। अभी तक आपके यहाँ पे केस एस्टैब्लिश हो चुका था, IAC अच्छे से चल रही है, उसको एक और एक लेवल अप करने के लिए ये मैनेजमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, डेफिनेटली उसमें विल बी देयर टू हेल्प यू एंड सो आई बिलीव दैट विल बी ऑल। अगर आपके पास अभी कुछ क्वेश्चन नहीं है तो या तो आप मेरे को लीड डाउन लिंक्डइन पे डायरेक्ट रीच आउट करो या फिर AIC फिनटेक को आप फॉलो करो, है ना। जो भी अपडेट्स होगा आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Your knowledge and insight will really help us to grow. Now it's a time to witness a significant moment, the MOU ceremony that signifies a collaboration between Atal Incubation Center, Vimtech, and IBM Group of Institutions. A comprehensive agreement that aims to foster collaboration and support between two institutions. This collaboration marks a factor of growth and innovation for us. It will help to provide incubation support, access to network, internship support, joint promotion of ideas and startups, and activities like setting up incubation center, training workshops, and etc. For this collaboration, I request Dr. Geeti Sharma as representative of IBM Group of Institutions and Satnam Mitra from AIC for Science Center. Please come down the stage. I think let's have a big round of applause. सेंटर में आ जाओ, सेंटर वेट रखिएगा। मैडम सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रही है। Guys, by the clapping, sir, stop, please. वेट 4-5 रख दो। वेट मैम, ठीक, थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you so much. AIC at DGM at AIC Vimtech.
Last but not least, now it's time to deliver the vote of thanks for our faculty members and all. Sorry, ma'am. Sorry. Sure, ma'am. I thank the esteemed resource person to deliver insight on incubation accelerators and the team Vimtech for collaboration. Also, I would like to thank the management, Dean Academics and Director of the Institute for providing the such platform for such event. Last not least, to thank all the faculty members and administrative staff and the students for joining us. Hope to have more such knowledgeable and fruitful sessions in future. Thank you, ma'am. Thank you, sir.